या डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती जब रो को कॉलम की जगह और कॉलम को रो की जगह पर रखते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आता। जैसे यहाँ दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो पहले में मैग्नीट्यूड के साथ एक कॉमा लगाए। सेकंड वाला है इफ़ ए इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे इंटू एन कॉमा एन greater than 1 and B with the matrix obtained from A by interchanging two of its row or column, then determinant B equal to minus determinant A। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, if two rows या columns of a square matrix A are proportional then magnitude of A equal to 0, so आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फोर्थ वाला दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ए वेयर बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय मल्टीप्लाइंग वन रो ऑफ ए बाई के। फिफ्थ वाला दिया है मैग्नीट्यूड के ए इक्वल टू के एन मैग्नीट्यूड ए वेयर ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रोज और कॉलम of a determinant is the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant। जैसे एग्जाम्पल या मैग्नीट्यूड दिया है a1 प्लस a2 bc p1 प्लस p2 qr u1 u2 v इक्वल टू मैग्नीट्यूड a1 bc p1 qr u1 v प्लस magnitude of a2 bc p2 qr u2 v। if the same multiple of the element of any rows or column of a determinant are added to corresponding element of any other rows column, then the value of new determinant remain unchanged। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 equal to magnitude a11 plus ka 31 फिर a12 प्लस के a12 a13 के a33 a21 और जैसा का जैसा हो जाएगा सेम a21 a22 a23 a31 a32 a33। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू 0। यदि किसी भी एलिमेंट के रो या कॉलम का डिटरमिनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इफ़ नाइन्थ वाला दिया है इफ़ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यदि हम किसी दो रो को हम जानते हैं तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinants। अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन डिटरमिनेंट पर आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या होते हैं। सो फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सेकंड दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड एन if a comma b and c are square matrix of the same order such that its column or row of a is the sum of its column rows and b and c and all other columns of a b c are identical, then magnitude a equal to magnitude b plus magnitude c। फोर्थ वाला दिया है i n equal to 1 where i n is the identity matrix of order n, o n is the zero matrix of order n, o n नहीं ये 0 n है, 0 n equal to 0 where 0 n is the zero matrix of order n। सिक्स दिया है if delta x be a third order determinant having polynomial as its element। सिक्स का a दिया है if delta a has two rows or columns proportional then x minus a is the factor of delta x। if delta a has three rows or columns proportional then x minus a square is a factor of delta x। सेवन दिया a square matrix A is a non-singular if delta A does not equal to 0 and singular if A equal to 0। एट्थ दिया determinant of a skew symmetric matrix of order is 0 and of an even order is a non-zero perfect square। नाइन्थ वाला in general magnitude B plus C does not equal to magnitude B plus magnitude C। determinant of a diagonal matrix
प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। 11 दिया है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। A square matrix of order n is a non-singular if its rank r equal to implies that if magnitude of a does not equal to 0 then rank a equal to n। 13 वाला दिया है if delta x equal to f1 multiply by x f2x f3x g1x g2x g3x a b c then क्या हो जाएगा। a दिया है summation of n x equal to 1 delta x equal to magnitude of summation n x equal to 1 f1x summation n x equal to 1 f2x। इसी तरीके से सेम उस तरीके से हम लिख देंगे, समेशन लगा देंगे। अब b दिया है। अब 14 वाला क्या है, इफ़ a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन a मैग्नीट्यूड ऑफ a इनवर्स इक्वल टू 1/, ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं। माइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है डिटर्मिनेंट का, 1 या -1। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स इज अ प्योरली रियल। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल टू 0 देन इट्स इम्प्लाइड मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू 0। माइनर एंड कोफैक्टर, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया है। माइनर फैक्टर कोफैक्टर क्या होता है वो पढ़ते हैं एडजॉइन, लेकिन इससे एक बार रिवाइज कर ले तो अच्छे से हमें समझ में आ जाए। इफ़ डेल्टा इक्वल टू मैग्नीट्यूड a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। यहाँ पर a11 सो पहला वन रो हो जाएगा, दूसरा वन कॉलम में आ जाएगा। रो हॉरिजॉन्टली होता है, कॉलम वर्टिकली होता है। देन द माइनर एम आई जे रो को डिनोट किया जाता है आई के साथ, जे को डिनोट किया जाता है कॉलम के साथ। एम मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट। ए आई जे क्या है, डिटरमिनेंट का जनरल वैल्यू है डिटरमिनेंट की। इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द आई रो एंड जेथ कॉलम। M11 equal to minor of A11 equal to magnitude of A22 A23 A32 A33। magnitude of M12 minor A12 equal to magnitude A21 A23 A31 A33। M31 A21 A22 A31 A32। the cofactor of the element Aij is Cij equal to -1 I plus j into Mij। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है Cij इक्वल टू -1 I प्लस जे इंटू Mij। एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। दिए गए मैट्रिक्स के कोफैक्टर में ट्रांसपोज होना है। एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है और सभी में वर्टिकल ब्रैकेट होते हैं। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 स्क्वायर ब्रैकेट T। फिर C11 C22 C11 C21 C3। ट्रांसपोज मतलब जो पहला वाला जो रो है उसे कॉलम बना लेते हैं, इसी तरीके से इंटरचेंज हो जाता है, इसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो पहला है द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट विद द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन अदर रोज और कॉलम इज 0। यदि किसी भी रो या कॉलम का सम करें या प्रोडक्ट करें तो इसकी वैल्यू 0 आती है। देन A11 C31 plus A12 C32 plus A13 C33 equal to 0 and so the sum of the product of any elements of any rows or column determined with the cofactor of the corresponding element of same row is delta. Third, in general, if magnitude A equal to delta then a magnitude summation n Aij Cij
and adjoint on A equal to delta n minus 1, where A is the matrix of order n into n. डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या है? तो इफ डेल्टा एक्स मैग्नीट्यूड ए एक्स बी एक्स सी एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स यू एक्स वी एक्स एक्स, देन डी डेल्टा बाई डी एक्स, सो ए डैश एक्स बी डैश एक्स सी डैश एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स यू एक्स वी एक्स और एक्स, सो ए प्लस ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड पी एक्स क्यू डैश एक्स आर डैश एक्स यू एक्स वी एक्स एक्स, फिर प्लस करेंगे ए एक्स बी एक्स सी एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स यू डैश एक्स वी डैश एक्स आर डैश एक्स, नहीं एक्स डैश। इसमें क्या किया है, पहले जब भी हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसी भी डिटरमिनेंट का, तो सबसे पहले रॉ में हमने लगाया है ए डैश लगाया है, ए अपोस्ट्रोफी एक्स, फिर दूसरे रो में लगाया प्लस करके, फिर प्लस करके थर्ड रो में लगाया है। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में तो एस साइन जैसा होता है। इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a11 इंटू एक्स, a12 इंटू एक्स, a13 इंटू एक्स, a21, a22, a23, a31, a32, a33, देन इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a11 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, a12 एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन a13 एक्स इंटू डी एक्स, a21, a22, a23, a31, a32, a33. If the element of more than one column or rows are function of x, then the integration can be done only after evolution expansion of the determinant. Solution of linear equation by determinant. Cramer rules. Case 1. The solution of the system of a simultaneous linear equation. a1x b1y equal to c1 equation 1, a2x plus b2y equal to c2 equation 2 is given by x equal to d1 by d, comma y equal to d2 by d, where d equal to magnitude of a1 b1 a2 b2, comma d1 equal to c1 b1 c2 b2 and d2 a1 c1 a2 c2, provided that d does not equal to 0. If d does not equal to 0, then the given system of equation is consistent, has a unique solution by x equal to d1 by d, comma y equal to d2 by d. If d equal to 0, d1 equal to d2 equal to 0, then the system is consistent and has infinitely many solutions. Third, if d equal to 0 and 1 d1 and d2 is non-zero, then the system is inconsistent. Case 2 क्या हो जाएगा, let the system of equation a1x b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. Then the solution of the system of equation is x equal to d1 by d, y equal to d2 by d, z equal to d3 by d. It is called Cramer's rule. इसे बोलते हैं Cramer's rule कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, where d equal to d1 d2 d3. अब फर्स्ट क्या है, if d does not equal to 0. if क्या है, d अगर 0 नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट है, यूनिक सॉल्यूशन है। यदि d 0 है तो कौन सा है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर d 0, d1 d2 इज नॉन जीरो, then the given system is inconsistent, having no solution. If d equal to 0 and d1 and d2 d3 are also be 0, then the system is consistent with infinitely many solutions. Fourth, if d does not equal to 0, then d1 d2 d3 equal to 0 has only trivial solution, x equal to y equal to z equal to 0. केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यदि प्रत्येक मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो जाएगी इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, implies that if A be the square matrix, then magnitude A minus x 1 equal to 0 is the characteristic of equation of A. The value of x are called
eigenvalues of A. Eigenvalues of A implies that if x cube minus 4x square minus 5x minus 7 equal to 0 is a characteristic equation of for A, then a cube minus 4a square plus 5a माइनस 7i इक्वल टू 0. प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सो फर्स्ट है द सम ऑफ द ईगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स ट्रेस. सेकेंड है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ईगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स डिटरमिनेंट. द ईगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस. फोर्थ है द फॉरेन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस. A and A comma have same eigenvalues. Sixth है the eigenvalues of skew Hamilton matrix of either purely imaginary are 0. Seventh है if x is eigenvalues of A then x is the eigenvalues of A stars. Eighth है the eigenvalues of a triangular matrix are its diagonal elements. If x is the eigenvalue of A and magnitude of A does not equal to 0, then a by x is the eigenvalue of A inverse. 10th दिया if x is the eigenvalue of A and magnitude of A does not equal to 0, then A magnitude by x is the eigenvalue of adjoint matrix of A. 11th if x1, x2, x3 dash xn are eigenvalues of A, then the eigenvalues of A square are x2 square इंटू एक्स एन स्क्वायर. यहाँ पर x2 नहीं है, यहाँ पर x1 है. यहाँ पर x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर डेडेस एक्स एन स्क्वायर होगा. यहाँ पर x2 स्क्वायर रॉन्ग है तो इसे सही कर लेते हैं. यहाँ पर 1 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या होता है. फर्स्ट मैग्नीट्यूड, पहले में 1 1, दूसरे में ए बी सी, तीसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए. तीनों पर ब्रैकेट है. सेकंड है पहले में 1 1 1, दूसरे में ए बी सी, तीसरे में ए क्यू बी क्यू सी. क्या हो जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई. इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स दिया है, इसे आप लर्न कर लेना. अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं डिटरमिनेंट की. ज्योमेट्री में एप्लीकेशन क्या होती है? लेट 3 पॉइंट इन अ प्लेन बी ए x1 y1 x2 y2 and c x3 y3, then area of triangle ABC equal to 1 magnitude x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 1 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट पर हो. यदि 3 पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर हो उसे कोलिनियर बोलते हैं. जैसे मैग्नीट्यूड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 equal to 0. Equation of line passing through the point A and B is 0. x1 x by 1 x1 y1 1 x2 y2 1. So 0. Minimum and maximum value of determinant. If magnitude A equal to magnitude A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9. So where AIS belongs to alpha 1 alpha 2 dash alpha n, then magnitude A maximum when diagonal elements are of curly bracket minimum delta A1 alpha 1 alpha 2 dash alpha n तक curly bracket closed, and non diagonal element are maximum alpha 1 alpha 2 comma dash alpha n. Also magnitude of A minimum equal to minus magnitude of A maximum. ठीक है. सो हेलो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है डिटरमिनेंट का. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सहारिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आपको हमारे चैनल की न्यू न्यू वीडियोस आपको हमारे चैनल की मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।